नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। भारत माता की जय। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને સૌથી પહેલા તો ડિફેન્સના બબ્બે મહાનુભાવો અહીં ઉપસ્થિત હોય એટલે આપણે જોરદાર બધા એટલે સેલ્યુટ તો વધુ સમય નહીં લઈએ, પરંતુ એમનો પરિચયની નિકટતા કેળવીશું એ પહેલા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના યશસ્વી પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ વગેરે સર. રમેશભાઈ 11,000 થી વધુ એસોસિએશનો, 11,000 થી વધુ સભ્યો અને 150 થી વધુ એસોસિએશનનું પીઠબળ કરાવે છે. એટલે ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી 2 લાખ ઉદ્યોગપતિઓનું પ્રતિનિધિત્વ શ્રી રમેશભાઈ કરે છે અને મિશન 84 એ તેમનું સ્વપ્ન છે. એ શું છે તેઓ તેમના જ શબ્દોની અંદર સમજાવશે. તો હું રમેશભાઈને વિનંતી કરું છું કે આપ સ્વાગત પ્રવચન પ્રસ્તુત કરો. It's a matter of great pleasure for me to welcome Honorable ex-Director General of DRDO, CEO and MD of BrahMos Aerospace, Honorable Sudhir K. Gupta. इस तालियों के ध्वनि में सर सूरत का प्यार आपके प्रति व्यक्त होता है. I would like to welcome our beloved and as like our family member, Honorable Brigadier B.S. Mehta sir. He has been with us always in each and every activity undertaken by Jai Jawan Nagrik Samiti, and the patriotism what we are feeling and the spirit of all Surtis at Surat, especially maybe the once and only one in India. I would like to welcome with honor Honorable Kanjibhai Bhalala, who is the Chief of Jai Jawan Nagrik Samiti, President of Saurashtra Seva Samaj. Sir, I should say that Mr. Kanjibhai is shaping up not only individuals but as a whole the society of Surat, in which way the culture and the civilized and the very disciplined people may take place, and they are making up the mind of people. You are with honor. Welcome Kanjibhai, apnu swagat chhe. Yes, and I would like to Mrs. Geeta ji, wife of Sudhir K. Sir, અને આપ સૌનું હૃદયના ઉમળકાથી અંતઃકરણથી ચેમ્બરના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે સ્વાગત કરું છું. મારા સાથી ઓનરરી સેક્રેટરી નિખિલભાઈ, ઓનરરી ટ્રેઝરર કિરણભાઈ, આપણા સૌ માટે ઇટ્સ એન ગ્રેટ મોમેન્ટ એન્ડ ગ્રેટ ઇવેન્ટ કે DRDO એક એવું વેલ્યુડ નેમ છે in the history of the world, in the history of India, કે જે આપણે પ્રાઉડથી હોઈ શકીએ છીએ કે જેને APJ અબ્દુલ કલામ જેવા વ્યક્તિઓએ એમને આજે આ ઊંચાઈ ઉપર મૂક્યું છે. તો એવા ઇન્ડિયાના ડિફેન્સ એક્સપોર્ટ્સમાં we have reached an unprecedented peak, skyrocketing from 686 crore in 2013-14 to an estimated of 16,000 crore in 22-23. મિત્રો 2014 માં બીજેપીની સરકાર આવ્યા પછી આઈ એમ નોટ ફ્રોમ એની પાર્ટી બટ આઈ શુડ સે કે 2016 માં જે ડિફેન્સ પ્રોક્યોરમેન્ટની જે પોલિસી બની એમાં ત્યારે લગભગ એવું હતું કે 30% મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિફેન્સના ઇક્વિપમેન્ટનું આપણે કરતા હતા અને 70% we were importing. The policy was made at that time to make and constrain the import up to 30% only and to manufacture in India to 70%. So we are here with proud, you can say કે આપણે એ લક્ષ્યની નજીક એકદમ પહોંચી ગયા છે ને એ રીતે આપણે આગળ વધીએ છીએ. ત્યારે આ DRDO માં BrahMos missile stands out of its combination
of speed and precision. Its top speed of Mach 2.8, around 2,200 miles per hour, makes it one of the fastest cruise missile globally. This speed allows it to fastest cruise strike targets with reduced reaction time, making it harder for enemy defenses to intercept. એટલે એવી એટલી ઝડપી 2200 માઇલના સ્પીડથી ચાલતી બ્રહ્મોસ મિસાઇલ જે બનાવી છે ઇન્ડિયાએ એ વર્લ્ડમાં બેનમૂન છે અને એનું કારણ એ આપણી પોલિસી છે અને ડીઆરડીઓ એવા ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ બનાવી રહી છે અને અત્યારે એ વે પર છે જેનાથી ભારત આવનારા સમયમાં very shortly we will be there in leading countries who are manufacturing and exporting the defense equipments. આવા ડીઆરડીઓ ના એક્સ ડાયરેક્ટર જનરલ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એમનું અને બીએસ મહેતા બ્રિગેડિયર સાહેબ અને કાંજીભાઈ સહિત આપ સૌ મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરી વિરમું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર સુધીરજી. ગુજરાતીની અંદર આપ સમજો છો કાંજીભાઈ કે આપ ગુજરાતી પણ બહુ સારી રીતે બોલી પણ શકો છો. તો એક વાત છે કે કયું ફૂલડાએ મારીને કે મને સંભાળતી ચૂંટ છે, ન તો વેણી માહી ગૂંઠ છે, ન તો ફૂલ માહી, કિંતુ યાદ અને પ્રેમનું ચિરંજીવી પ્રતીક બની રહે છે. આવા યાદ અને પ્રેમના ચિરંજીવી પ્રતીક સમા પુષ્પો આપને અમે અર્પણ કરવા માંગીએ છીએ. પ્રમુખશ્રીને વિનંતી કરું છું કે આપનું પુષ્પગુચ્છથી અને સ્મૃતિ ભેટથી સન્માનિત કરે. प्रमुख आईटीबी spoke about the sweet fragrance of the loving presence of flower, but really we innovated it in a way. It's not a perishable flowers, but made from the cloth manufactured in Surat. It's a sari, ma'am. Sari. So I think this is the right time you should present to the madam. Madam, please come. आइए. डॉक्यूमेंट हो जाएगा. Yeah. Friends, defense and Laskar. जी. It's a token of love. मित्रों મિત્રો આપણે હંમેશા પોલીસ માટે કહેતા હોય છે કે આપણે શાંતિથી ઊંઘી શકીએ છીએ કારણ કે કોઈક આપણે માટે જાગે છે. ઇન ધ સેમ વે આપણી સરહદ ઉપર કેટલાક એવા બિરલાઓ અને જાબાઝ યોદ્ધાઓ લડે છે જેનાથી આપણો દેશ હંમેશા સુરક્ષિત રહેતો હોય છે. યુદ્ધની અંદર લડી ચૂકેલા હોય તેને એ વીરતાની વાતોની, શૌર્યની વાતોની જાણકારી હોય એ બહુ સ્વાભાવિક છે. તેવા એક વ્યક્તિત્વ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે અને તેઓનું નામ છે બ્રિગેડિયર બીએસ મહેતા રિટાયર્ડ સાહેબ. તો એમનું સ્વાગત કરવા માટે વધુ એક વખત તમામ મહાનુભાવોને વિનંતી કરું છું. બ્રિગેડિયર સર, આપ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા છો, અમારા માટે ખૂબ આનંદ અને ગર્વની વાત છે. આપના લશ્કરની, આપના શૌર્યની વાતો અમે ઘણી બધી સાંભળી છે, તો આજે અમને રૂબરૂ આપ મળી રહ્યા છો ત્યારે એનો સવિશેષ આનંદ હોય એ બહુ સ્વાભાવિક ઘટના છે. આ કાર્યક્રમ શું છે આમ તો બધાને ખબર છે, પરંતુ વધુ આ વિષયને આંતરિક રીતે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ.
અને કાંજીભાઈ ભાલાના હોય તો એનાથી વધારે વિશેષ વ્યક્તિત્વ બીજું કયું હોઈ શકે આ વિષય ઉપર પ્રકાશ પાડવા માટે? તો કાંજીભાઈને વિનંતી કરું છું. નમસ્કાર. આજે સુરતમાં એક ખૂબ મહત્વના અતિથિઓ આપણી સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. આવતીકાલે કારગિલ વિજય દિવસ છે અને દેશના 527 વીર જવાનોએ બલિદાન આપ્યું છે ત્યારે આપણને આ વિજય મળ્યો છે. એ દિવસ નિમિત્તે મહેમાનો સુરત આવ્યા અને આજે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં આપણે એની સાથે આ વિચાર ગોષ્ઠી એની સાથે થોડીક વાતો થોડોક પરિચય કેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. એવા આપણા મહેમાન રમેશભાઈ કીધું DRDO ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે ડિફેન્સ મંત્રાલયના અંડરમાં આ ડિફેન્સને લગતી ટેકનિક સાધનો ડેવલપ કરવાનું કામ કરે છે. અને આપણે પ્રાઉડ છે કે પૃથ્વી કે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ જે બન્યા છે એ ટીમના મિસ્ટર સુધીર શર્मा डॉक्टर એના ટીમના જનક છે, સભ્ય છે. સાહેબ આપકા પૂરા સ્વાગત यहाँ करते हैं. એક અનોખું એક વ્યક્તિત્વ છે કે DRDOમાં ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે કામ કર્યા પછી અત્યારે ભારત સરકાર અને રશિયાનું સંયુક્ત સાહસ બ્રહ્મોસ એરસ્પેસ જે કંપની છે એમના તો CMD અને MD છે, CEO અને MD છે. એટલે ખૂબ મોટી જવાબદારી સાથે કામ કરી રહ્યા છે. ડિફેન્સની જે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી મિસાઇલ ને સાધનો હોય એના ડેવલપમેન્ટ માટે કામ કરી રહ્યા છે. આપણને ખબર હશે કે રશિયા અને યુક્રેનનું જે યુદ્ધ ચાલે છે ને, હવે સામસામી ગોળીબાર કરવાનો સમય ગયો. હવે તો મિસાઇલ ટુ મિસાઇલ યુદ્ધ થાય છે, ટેન્ક ટુ ટેન્ક યુદ્ધ થાય છે. ત્યારે ખૂબ મહત્વની જવાબદારી ડિફેન્સના ટેકનોલોજી અપડેટ કરવાની જેમના શિરે છે એવા સુધીર કે મિશ્રા સાહેબ આજે આપણા મહેમાન છે. આપણે ખૂબ આજે ગૌરવની વાત છે. બ્રિગેડિયર મહેતાનો પરિચય કિરણભાઈ આપશે. 1999 થી 24 વર્ષથી બ્રિગેડિયર મહેતા સાહેબ જય જવાન નાગરિક સમિતિ સાથે સંકળાયેલા છે. સાહેબ આર્મીમાં તો કામ કર્યું. 1971ના યુદ્ધમાં ભારત અને પાકિસ્તાનના એ યુદ્ધમાં બ્રિગેડિયર મહેતા સાહેબ એક નહીં, એમના બીજા 3 એટલે ચાર ભાઈઓ 71ના યુદ્ધમાં આર્મીમાં કામ કર્યું. એક નાનકડી સ્ટોરી એ યુદ્ધ પૂરું થયું અને એક દિવસ ચારેય ભાઈઓ ટેબલ ઉપર બેસીને જમતા જમતા યુદ્ધ પૂરું થયોનો આનંદ વ્યક્ત કરતા હતા. ત્યારે એમને મધરે એવું કીધું કે કદાચ ચારમાંથી એકાદો શહીદ થયા હોત ને તો પણ મને વધુ આનંદ થાય. આવા મધરને આજના કાર્યક્રમનો હેતુ સમજાવવાની મને વાત કરી મારા માટે અઘરો છે. આ વેપારની દુનિયાના માણસો આ સુરત છે આપણું. આપણા મિશ્રા સાહેબે ડોમેસ્ટિક સ્કિલ આ ટેકનોલોજી દુનિયાભરમાં પહોંચાડવા માટેની સ્કિલ માટે જાણીતા છે. સુરત અને સૌ ઉદ્યોગ ગૃહ ચેમ્બર સાથે જોડાયેલા તમામ વ્યક્તિઓ ડિફેન્સ સાથે શું વેપાર કરી શકે, ડિફેન્સ માટે શું કામ પોતાની પ્રોડક્ટ આપી શકે, આપણી પ્રોડક્ટ દુનિયામાં કેમ વેચી શકીએ, એ ઘણું બધી માહિતી મિશ્રા સાહેબ પાસેથી આપણને મળશે. કદાચ એના પાવર પ્રેઝન્ટેશનમાં ઉદ્યોગોના કે કોઈ કામ કરવાના સ્કોપ ચાન્સીસ પણ આપણને દેખાશે. ખૂબ પ્રેક્ટિકલ છે, મોટિવેટર પણ છે. એનામાં જે કહેવાય કે કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ ખૂબ સરસ છે. અને આવા વ્યક્તિ જે ડિફેન્સ સાથે સંકળાયેલા છે અને APJ કલામ સાથે જેમણે કામ કર્યું છે એમની સાથે માત્ર વાત કરવાની પણ તક મળે એ આપણા માટે ખૂબ પ્રાઉડની વાત છે. આજે આપણે એને વાત કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ કાજીભાઈ. વધુ સમય નથી લેતો અને કિરણભાઈ તુમર અમારા માનનીય ખજાનચી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના વિનંતી કરું છું કે તેઓ આજના વક્તા બ્રિગેડિયર BS મહેતા સાહેબનો પરિચય પ્રસ્તુત કરે.
Good evening, ladies and gentlemen. Today I am truly honored to introduce my dear young retired army man, Brigadier Balram S. Mehta, veteran, a man of extraordinary valor and dedication to serving the nation, जिनको हम प्यार से ब्रिगेडियर BS मेहता के नाम से सब जानते हैं. He joined the National Defence Academy (NDA) in 1962, commissioned into 45 Cavalry in 1966, and lead the tank versus tank battle of Garidpur during the 1971 war, earning the Military Cross for his bravery. After 32 years of service, he retired and contributed to higher education, revived Mahesh Yogi University, and authored the academic book The Burning Chappies. The passionate patriot, he actively supports defense personnel and served as an advisor to NGOs helping martyrs' families. He actively supported the Jai Jawan Nagrik Samiti since 1999. Let us warmly welcome Brigadier Balram S. Mehta for an engaging and insightful interactive session. Welcome, sir. Thank you, sir. સાહેબના પરિચયમાં ઉમેરી શકાય કે થોડું વહેલું રિટાયરમેન્ટ લઈને ગુજરાત સ્ટેટ સૈનિક વેલફેર જે બોર્ડ છે એમના ચેરમેન તરીકે પણ એમણે કામ તો મિત્રો દેશ પ્રેમની ખુમારીની વાતો ચાલો આપણે મહેતા સાહેબ પાસેથી સાંભળીએ. सर आप अभी हमें संबोधन करेंगे. ये सभा को आपके विचार को हम जानना चाहते हैं. मेरी आवाज आ रही पीछे तक. प्रेसिडेंट साउथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रमेश बगासिया जी, काजी भाई, other members of SGCCI, Dr. Mishra, his wife Geeta Mishra, बाकी जो members present. शुरू में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किरण जी ने जो अंग्रेजी में इतना कुछ बताया मेरे बारे में, आप में से किसी को समझ नहीं आया. उसको कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है. सिंपल तौर पे वो ये कहना चाहते थे कि ब्रिगेडियर मेहता जिनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, वो टेररिस्ट बन के हिंदुस्तान में पिछले 75 ईयर से यहीं पे जो है रह रहे हैं और आप लोग पहचान नहीं पाएंगे. तो इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज. क्योंकि आर्मी का हूँ तो देखो दिस इज कैमोफ्लेज. पर शेयर में ये करना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है. कमीशन मिलिट्री सर्विस ये सब तो मैंने किया, बट मैं बेसिकली थोड़ा अक्लमंद हूँ. और मैंने 1977 में क्या किया कि एक भावनगर की लड़की थी जिसका नाम है जयश्री, उसके साथ मैंने शादी कर ली. तो उसका एडवांटेज ये है कि मैं खुद जो है पंजाबी हूँ, तो मेरी वाइफ को जो है पंजाबी नहीं आती, मुझे जो है गुजराती नहीं आती. तो ये जो रिलेशनशिप है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है. तो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ. रिटायरमेंट के बाद मुझे मौका मिला, मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट किया था. लड़ाई वगैरह ये सब तो नॉर्मल, जब मिलिट्री ज्वाइन करो तो ये सब कार्रवाई होती रहती है. तो मैं गुजरात में आया और गुजरात में मुझे मौका मिला टू गेट इन टच विद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि गांधीनगर के रास्ते पे पड़ता है. और वहाँ पे उस टाइम पे डायरेक्टर होते थे वीजी पटेल, डॉक्टर वीजी पटेल. उनके साथ मिलके मैं सक्सेसफुल रहा टू रन द फर्स्ट डिफेंस एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फॉर रिटायरिंग डिफेंस पीपल.
उसका फायदा ये हुआ कि कुछ सालों के बाद जितने भी हमारे IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने 6 महीने का कोर्स जो है शुरू किया फॉर ऑफिसर, JCO, जवान, जो भी वॉलंटियर होके उस कोर्स को जो है करना चाहता है, विच आई थिंक इज अ बिग एडवांटेज। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे मिला व्हाइल मिलिट्री सर्विस में था, नॉट टू रेज अ कंपनी बट टू रेज अ रेजिमेंट, और उस रेजिमेंट का नंबर था 13, जो कि हमारे डॉल्फिन के इधर मुकेश भाई बैठे हैं, इनसे मैं कह रहा था कि ये जो नंबर है 13, ये बड़ा पावरफुल नंबर होता है, क्योंकि ये सिखाता है, जैसे कि गुरु नानक देव जी ने बोला है, 13 सब 13, मतलब अपना तो कुछ होता ही नहीं है। और दूसरा, गुजरात में आने के बाद मैंने और भी बहुत कुछ सीखा। हर एक साल जब मैं आता हूँ तो सूरत से पर्टिकुलरली और गुजरात से मुझे बहुत सीखने का जो है मौका मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है गुजरात से, गुजराती से, पर्टिकुलरली सूरती से है, वो है द स्पिरिट टू गिव। देने के अंदर इनका दिल इतना बड़ा है कि पूरा हिंदुस्तान जो है इसको एनवी करता है कि गुजरात और सूरती किस प्रकार से छोटे अपॉर्चुनिटी के ऊपर इनकी जो लेडीज हैं, जो फैमिलीज हैं, जो मेंबर हैं, वो फटाफट अपना थेपला, खाना, जो भी है सब कुछ तैयार करके जहाँ पे भी डिफिकल्टी पड़ती है पहुँचाते हैं और रीच आउट करते हैं। ये बहुत बड़ी शिफ्ट है, और जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, दैट इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। तो मुझे मौका मिलता है टू लर्न अ लॉट फ्रॉम सूरत, और मेरी कोशिश यही रहती है, जय जवान के थ्रू वन एक्सट्रीम एग्जाम्पल पूरे कंट्री के अंदर कैसे इन्होंने शुरू किया, क्या इनकी जर्नी रही 25 साल। काजी भाई ने, जो बाकी मेंबर्स हैं, साजी भाई बैठे हैं इधर, बाकी सब मेंबर्स इधर बैठे हुए हैं, सब जानते हैं क्या होता है। एब्सोल्युटली रिमार्केबल। आज ऐसी हालत है जय जवान नागरिक समिति की, जब एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो इट इज रिलेड राइट अक्रॉस द वर्ल्ड, so the whole world is beginning to know, और I am very very happy of my association with। आज का मेरा मेन एम ये था कि आपने सब देखा है यूक्रेन वॉर के बारे में। यूक्रेन वॉर ने दुनिया को और वॉरफेयर को बिल्कुल जो है तब्दील कर दिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। पूरा जो सिस्टम है आर्मी का, डिफेंस का, वो बिल्कुल ऊपर नीचे जो है कर दिया गया है। और गुजरात, पर्टिकुलरली सूरत और गुजरात के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टू मेक गुजरात अ इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्री, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पर्टिकुलरली फॉर सूरत, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, टू यूटिलाइज द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर मिश्रा टू मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द कमिंग डे। बिकॉज आने वाले दिनों में किसी को बैठ के धावा नहीं करना, दुश्मन का गला जो है नहीं जाके काटना है, आपको एक कंप्यूटराइज रूम के अंदर ही बैठना पड़ेगा। और जो ब्रह्मोस मिसाइल साहब ने बनाए हैं कंट्री के लिए, उस प्रकार के ड्रोन, उस प्रकार के स्पेसशिप, उस प्रकार के वेपन सिस्टम जो है इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट जो है पड़ेगी। उसके अंदर गुजरात का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, बिकॉज आपसे बेहतर एंटरप्रेन्योर्स है नहीं। और आने वाले सालों में, जैसे बता रहा था रमेश भाई को, कि कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, जिसमें आपको फुली पार्टिसिपेट करना है, अगर कंट्री स्ट्रांग बन जाती है इकोनॉमिकली, तो लड़ाई का मतलब ही नहीं होता, फिर हमको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे USA और यूरोप यूक्रेन और रशिया की लड़ाई करा रहा है, हम भी बैठ के बाकियों की लड़ाई कराएंगे, हमको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं। लास्ट मेरा ये थॉट है कि पहले तो हम लोग का डेंजर होता था कि पंजाब से अटैक आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, बट गुजरात भी एक बॉर्डर स्टेट है, बिकॉज कोस्टल है, और सब कुछ जो है अभी लैंड से सी की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। 9/11 आपने देखा बॉम्बे में पाकिस्तान ने क्या किया था। आने वाले सालों में जो पानी जो ओशन जो है, जो रिवर, जो सी है, वहाँ से जो है डेंजर होगा। और जहाँ तक गुजरात का ताल्लुक है, इट इज गॉट अ वेरी लार्ज कोस्ट लाइन। अभी हमारा ग्रेट बेनिफिट है कि डॉक्टर
सुधीर मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इन्होंने जो काम किया है ब्रह्मोस के अंदर, वो मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये ब्रह्मोस मिसाइल को पहले हम लोग सिर्फ ग्राउंड से इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम इसको शिप से इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम इसको एयर से इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम इसको अपने सबमरीन पानी के नीचे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो स्पीड है और जो टेक्नोलॉजी है, इट इज सो इम्प्रूव कि जो बिगेस्ट डिफेंस डील हुई है अभी तक कंट्री में, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रह्मोस। लास्ट मेरा थॉट है जो कि रमेश भाई से भी मैंने शेयर किया था और आप सबके सामने भी रखना चाहता हूँ कि साउथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्योंकि बहुत वेल ऑर्गेनाइज है और जो मिशन 84 अभी आप लोग स्टार्ट करने वाले हो, उसमें पूरी कंट्री को जो है आप लोग शेकअप कर दोगे, पूरे सब कॉन्टिनेंट को जो है शेकअप कर दोगे। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है, इतनी बड़ी स्कीम रमेश भाई ने ऑलरेडी बना ली है और इसकी बहुत चर्चा होगी आने वाले दिनों के अंदर। कई हाई लेवल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट जो है भी किया जाएगा और उससे जो है अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ से आपको मेरे ख्याल इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और लकीली जय जवान ऑन बिहाफ ऑफ जय जवान वी वर एबल टू इनवाइट डॉक्टर मिश्रा। इसका मेरे ख्याल इंडिविजुअली डायरेक्टली और जो कोऑपरेटिव स्पिरिट है सूरत वालों की ऑफ हेल्पिंग ईच अदर टू डू समथिंग फॉर द डिफेंस, आई थिंक इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इट विल बी अ मेजर सक्सेस and Surat and Gujarat will become the financial capital of the country. Thank you very much. Thank you, sir, for your motivational words and sentences. Thank you very much. Friends, allow me to introduce Dr. Sudhir Kumar Mishra, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, फिर भी a distinguished missile scientist and former CEO and MD of BrahMos Aerospace. With over 37 years of experience in missiles technology and defense diplomacy, he led the development of the world's fastest supersonic cruise missile, ensuring national security and meeting the needs of the Indian Armed Force. Dr. Mishra's academic achievements and numerous accolades, including the DRDO Scientist of the Year award, highlight his remarkable contribution to the field. Let's welcome Dr. Sudhir Kumar Mishra with appreciation for his exceptional service to our nation's defense. Let's have a round of applause for Dr. Sudhir Mishra. सर, आपको बोले इससे पहले आप लोग जब प्रेसिडेंट सर की कैबिन में थे तो हमने एक थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन हमारे ये जो ऑडियंस थे उनके साथ ली थी। उन्होंने जो क्वेश्चंस थोड़े खड़े किए हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि आप वो क्वेश्चंस को आपके स्पीच में भी कवर कर सको। First, everybody wants to know that why the whole world is spending so much for defense. When we are talking, no, आप बाद में लेंगे, खाली मैं आपको बता देता हूँ why the whole world is spending so much for defense when we are talking about Vishwa Bandhutva and Bhaichara. What is the need of that? The second question. चंद्रयान, अभी वो छोटे छोटे बच्चे भी पूछ रहे हैं कि चंद्रयान, लेकिन चंद्र पे जगह है तो क्या है, चंद्रयान क्यों हमें करना चाहिए, वो मिशन से फायदा क्या होता है देश को या किसी और भी किसी को भी। इसरो जो ये काम करती है करोड़ों जो खर्च करती है, लेकिन what are the benefits of that? जो तीसरा क्वेश्चन आया तो which country is the best in missile science and what where India stand, हम कहाँ पर है। एंड जो आपने जो दिखा डिफेंस डिप्लोमेसी, हम लोग डिप्लोमेसी का सिर्फ अर्थ करते हैं भारत और पाकिस्तान। वो आलिया भट्ट भारत से पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में जाके जासूसी करती है, फिर वो मर जाती है। तो ये क्या होता है वो हमारे ऑडियंस की समझ की बाहर की बात है, आप उसको समझाएंगे। और अल्टीमेटली डिफेंस इंडस्ट्री को क्यों बढ़ावा मिलना चाहिए व्हेन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विश्व बंधुत्व एंड भाईचारा। सो दीज आर द क्वेश्चन, इफ यू कैन कवर इन योर स्पीच वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। विद दिस वर्ड्स प्रेजेंटिंग बिफोर यू वंस अगेन डॉक्टर मिश्रा। आदरणीय प्रेसिडेंट सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रमेश भाई, कांजी भाई, जय जवान नागरिक समिति के अध्यक्ष निखिल भाई, मुकेश भाई, हिमांशु जी,
किरण जी, और आप सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। जब और आप सोच रहे हो कि मैंने बलराम सर को, मेहता सर को क्यों नहीं एड्रेस किया, एक्चुअली में वो मेन रीज़न है मुझे यहाँ लाने के लिए। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। और जब मैं ब्रिगेडियर मेहता से बात कर रहा था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या बोलेंगे। यहाँ पर सूरत में काफ़ी मतलब एक मिला जुला यहाँ पर ऑडियंस होगा, तो उनको किस चीज़ के बारे में बताना। तो हम लोगों ने पता किया कि सोचा ये कि जो ऑडियंस है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जो ऑडियंस की स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो है एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप जो करते हैं वो वर्ल्ड क्लास के लेवल पे ले जाके करते हैं। जहाँ टेक्सटाइल की बात आई तो आप वर्ल्ड क्लास बेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए। जहाँ डायमंड की बात आई, आर्टिफिशियली क्रिएटेड डायमंड की बात आई तो आप उसमें बेस्ट बन गए। तो आप लोगों के अंदर एक क्वालिटी है कि आप जो भी करते हैं तो वो सबसे अच्छा करते हैं, और आप अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी में आएंगे तो भी वो दुनिया में सबसे अच्छा करेंगे। और जहाँ तक बात आती है टेक्सटाइल की और डायमंड की, तो इसमें जो नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत लो लेवल का नहीं है, वो बहुत हाई लेवल का होता है। तो एक तो ये है। दूसरी बात, हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट को इंपोर्ट करती है, बाहर दुनिया से खरीदती है। और मैं आपसे इसके बारे में बात करूँगा, तो क्यों खरीदती है और उसके पीछे कारण क्या है और उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तीसरी बात है कि वो बाद में मुझे समझ में आया, मुकेश भाई के साथ मैं बात कर रहा था आज दिन जब मैं आ रहा था, तो मुकेश भाई एक सफल उद्योगपति हैं और वो अभी भी चाहते हैं कि वो एक और वर्टिकल बनाए जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी हो। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सभी लोग भी ये सोचते होंगे कि एक हमारा नया वर्टिकल बने, एक नया बिजनेस बने जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी भी हो। क्यों डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, उसका जो कारण है मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। और जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है वो इस ऑडियंस के लिए बहुत मतलब सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको आगे बताता जाऊंगा और आपको बात समझ में आती जाएगी कि करना क्या है। जो मेरा मेन टाइटल है, जो आज बोलने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मिलिट्री अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या हैं जो हम यूज कर सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए। इस दुनिया में आपने देखा होगा ये जो यूक्रेन वार के बारे में ब्रिगेडियर मेहता ने बताया आपको, तो इसमें यूएस, यूरोप और बाकी जो कंट्रीज हैं वो रोज लगभग कमिट करती हैं कि $3 बिलियन, कभी बोलती हैं $5 बिलियन, कभी $10 बिलियन। इसका मतलब ये है कि मनी कहीं से तो आ रही है और कहीं खर्च हो रही है। और जो हम $1 बिलियन की बात कर रहे हैं, मतलब अभी तक कितने सैकड़ों $1 बिलियन खर्च कर दिए उन्होंने, कमिट कर दिए। तो इंडिया ने उसमें कितना बिजनेस किया, जो सैकड़ों $1 बिलियन खर्च हुए हैं वो हमारा उसमें कितना प्रॉफिट बना, हमारे को कुछ मिला कि नहीं मिला। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको तो जीरो मिला। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है और सारे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। रशिया भी प्रॉफिट बना रहा है उसमें, यूक्रेन भी प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन इंडिया प्रॉफिट नहीं बना। मतलब कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने, कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि ये मतलब क्यों करना, हमको तो शांति प्रिय होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। आप मेरा प्रेजेंटेशन तो है, मगर ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको बोलता जाऊँगा, बताता जाऊँगा कि क्या है। अच्छा, अब जो हमारा सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि डिफेंस सेक्टर है क्या, डिफेंस सेक्टर में कौन कौन हैं, इसमें क्या क्या कौन कौन स्टेक होल्डर हैं। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो डिफेंस सेक्टर है, इसमें आती है इंडस्ट्री, इसमें आते हैं यूज़र, और इसमें जो स्टेक होल्डर और गवर्नमेंट। डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। और आप जैसा बता रहे थे कि सूरत ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया, गुजरात ने, तो सबसे बड़ा तो हमको गुजरात में जो है वो मोदी जी दिए, नरेंद्र मोदी जी। तो जो मोदी जी हैं, इन्होंने 10 साल में पूरा, देखिए मैं राजनीति की नहीं,
आप में से कुछ लोग कांग्रेस को समर्थन देते होंगे, कुछ लोग बीजेपी को देते होंगे, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी को आप देते रहिए, लेकिन पिछले 10 सालों में इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे और उन्होंने काफी कुछ किया है जो दिख रहा है। तो इसलिए हम गुजरात को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इतना अच्छा हमको प्रधानमंत्री दिया। तो जहां तक फिर दूसरी बात, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए, वहां पर उन्होंने 80,000 करोड़ का जो राफेल एयरक्राफ्ट तो सबमरीन डील साइन किया। तो अगर 80,000 करोड़ का फ्रांस के साथ वो साइन कर सकते हैं तो कम से कम 8,000 करोड़ का तो भारतीय इंडस्ट्री के साथ कर सकते हैं। 10% की बात मैं कर रहा हूँ। तो उनको इन्फ्लुएंस कौन करेगा? उनको इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे इंडस्ट्री लीडर्स। आप लोग उनको बताएंगे कि हम ये बना सकते हैं, हम ये कर सकते हैं इस देश में, तो उनको 80,000 खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दिन आना चाहिए जब फ्रांस हमसे 80,000 करोड़ का डील करे, हमको इजराइल हमारे साथ 50,000 करोड़ का डील करे। तो ये कौन करेगा? ये हमारे एंटरप्रेन्योर करेंगे, ये हमारे जो यंग बच्चे हैं ये लोग करेंगे। और इन यंगस्टर्स को कौन इनका हैंड होल्डिंग करेगा, कौन इनको हाथ पकड़ के ऊपर लाएगा? वो आप इंडस्ट्रीज लोग लेके आएंगे उनको। और इस समय हमारे पास मनी है, पैसा है, जमीन है, अपॉर्चुनिटीज हैं, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जो चीज़ मिसिंग है वो है नॉलेज। आपने यूक्रेन वॉर में देखा, सबसे ज़्यादा मिसाइल यूज़ हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा UAV यूज़ हो रहे हैं, फिर उसके बाद जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो भी यूज़ हो रही है, साइबर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। और लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट हैं कि नहीं है? जो एक्सपर्ट हैं वो दूसरे देशों में क्यों जाते हैं? देखिए, गुजरात तो बहुत बड़ा NRI सेंटर है, तो हम जो हमारे NRIs गए हुए हैं वो वापस भी आ सकते हैं देश में अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर उनको हाई टेक्नोलॉजी एरिया में काम करने का मौका मिले। तो जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें तो अहमदाबाद में भी गिफ्ट सिटी जो खुल रही है, तो गिफ्ट सिटी आपको सिर्फ वो बिल्डिंग दिखती होगी, लेकिन जो गिफ्ट सिटी है ये पूरे ग्लोब में इंडिया का रोल बदल देगी। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन पैदा होगा, बहुत बड़ा एक जो दिख नहीं रहा है ना हमको, वो होने वाला है। तो आगे आने वाले 5 सालों में अहमदाबाद, गुजरात और भारत फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक प्लेयर होने वाला है, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हमको फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में कैसे एंटर होना है, उसके लिए भी हमको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमको अपने प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, उसके लिए हमको बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए हमको जो हमारा हार्डवेयर सेक्टर है, हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर सेक्टर है, क्योंकि अभी हमारे सर्वर जो हैं यूरोप में है, US में है, सिंगापुर में है, उन सर्वर को लाके हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा जिसमें वो डाटा हमारा सिक्योर रहे, तो हमको उनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिफेंस में भी यूज होंगी। आज अगर हम चाहें कि देखिए, पाकिस्तान से तो हमारी लड़ाई है ही नहीं, अब हमारी लड़ाई है चाइना के साथ। अब अच्छा, आप लोग ये मीडिया में मत डालिएगा कि लड़ाई चाइना के साथ है, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। मतलब हमारी लड़ाई जो है बड़े देशों के साथ है, कंपटीशन है, बोलिए आप, लड़ाई भी नहीं बोलते, कंपटीशन हमारा बड़े देशों के साथ है। तो अगर वो हमारे फाइनेंशियल जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसको चोक कर देंगे सैटेलाइट के जरिए, साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए, तो फिर हमारे देश की प्रगति रुक जाएगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साइबर टेक्नोलॉजी में काम करें, साइबर टेक्नोलॉजी में काम फिर डिफेंस साइंटिस्ट करेंगे। आपके जो गिफ्ट सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? ये काम करेगा DRDO, ये काम करेंगे हमारे साइबर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। तो इसलिए जो है ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है इसका बहुत बड़ा महत्व है। और मैं आपको DRDO के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि DRDO के अंदर हमारे पास लगभग 46 लेबोरेटरीज हैं, और ये लेबोरेटरीज अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। कुछ नेवल टेक्नोलॉजी में काम करती हैं, कुछ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी में काम करती हैं, कुछ मिसाइल्स में काम करती हैं, कॉम्बैट इंजीनियरिंग में काम करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करती हैं, कम्युनिकेशन में काम करती हैं, साइबर टेक्नोलॉजी में काम करती हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती हैं। और इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, आप कुछ भी करेंगे, आप अगर डायमंड भी बनाते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, कोई तो करता है, तो उस सर्टिफिकेशन जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो भी DRDO करता है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी में लोग शेयर नहीं करते टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आपने सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी शेयर कर दी तो काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाती है कि आपने बनाया कैसे।
तो इसलिए लोग शेयर नहीं करते हैं। तो हमको सर्टिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बनाने पड़ते हैं। फिर डीआरडीओ का बजट, तो डीआरडीओ मेरे सब काम करता है तो उसका बजट कितना है। तो डीआरडीओ का जो पूरे डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा इस साल का है लगभग 593 करोड़, यानी कि 5,93,000 करोड़, और डीआरडीओ का बजट है 24,000 करोड़ लगभग। तो ये जो 24,000 करोड़ है ये कहाँ खर्च होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसमें से कितना हिस्सा सूरत में आता है ये आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो आप देखेंगे, वैसे अहमदाबाद में जब मैं डीआरडीओ में था तो अहमदाबाद से हम लोग काफ़ी खरीदते थे, लेकिन हम रॉ मटेरियल खरीदते थे, तो सेमी फिनिश्ड गुड्स खरीदते थे। फिनिश्ड गुड्स में पैसा है, जो मेन मनी है वो फिनिश्ड गुड्स। अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट बना के देंगे उसमें मनी है। अगर आप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं तो चिप की कीमत तो $10 है, लेकिन उस चिप से जब आप सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी कीमत हज़ारों डॉलर में हो जाएगी, हो सकता है $10 of thousands में हो जाए। तो मेन फायदा आपको जो नॉलेज ड्रिवन प्रोडक्ट है उसको बनाने में है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको डीआरडीओ के प्रोडक्ट बताए हैं कि डीआरडीओ क्या क्या बनाता है। डीआरडीओ बनाता है मिसाइल, सबमरीन, एयरक्राफ्ट्स, फिर जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो डीआरडीओ ने बनाया है। फिर जो एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम एयरक्राफ्ट है वो डीआरडीओ ने बनाया है। मेन बैटल टैंक बनाया है, बहुत वैराइटीज़ की मिसाइल्स बनाई हैं, अग्नि सीरीज़ की मिसाइल, पृथ्वी सीरीज़ की मिसाइल्स, और भी जो मिसाइल्स होती हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मतलब मिसाइल उसको कहा जाता है कि जो डिस्टेंस से अपने जो एनिमी है उसको ख़त्म कर सके। एनिमी के एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, टैंक हो सकते हैं, शिप हो सकते हैं, सबमरीन हो सकती है, तो उनको अगर ख़त्म कर सकते हैं तो हमको मिसाइल की ज़रूरत पड़ती है। फिर जब आप सी में जाते हैं तो आपको टॉर्पीडो की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका जो एनिमी शिप है या एनिमी सबमरीन है उसको ख़त्म करने के लिए। फिर आपको सबसे, देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी को ना बेसिकली आप 4 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्लेटफॉर्म हो गए आपके एयरक्राफ्ट, टैंक, शिप, सबमरीन, तो ये हो गए प्लेटफॉर्म, मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म। अच्छा, इन प्लेटफॉर्म्स में लगते हैं आर्मामेंट लगते हैं, मिसाइल, गन, जो भी वेपन्स होते हैं वो होते हैं आर्मामेंट्स, तो उसमें आर्मामेंट्स लगते हैं। तीसरा होता है सेंसर मतलब कि आप एनिमी को कैसे देख सकते हैं दूर से, मतलब रडार होना चाहिए आपके पास, सोनार होना चाहिए, कमांड कंट्रोल सेंटर होना चाहिए, कम्युनिकेट करते आना चाहिए आपको, तो वो होते हैं सेंसर। और चौथा होता है ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी। ह्यूमन सेंट्रिक मतलब कि जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोल्जर को किसी भी जगह पर फाइटिंग करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे आप सी में हो या डेजर्ट में हो या जंगल में हो या कोल्ड डेजर्ट, मतलब लद्दाख वगैरह जहाँ पर -40 -50 डिग्री है, कारगिल में हो, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि जो सोल्जर हैं हमारे प्रोटेक्टेड रहें। उनको ऐसा ना हो कि आपने छोड़ दिया वो ठंड से ही मर गए, तो फिर तो मतलब पूरा आप जीती हुई लड़ाई ही हार गए, आप लड़े नहीं और हार गए। तो उन सब के लिए सोल्जर सेंट्रिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो डीआरडीओ बनाता है। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि डीआरडीओ जो भी टेक्नोलॉजी बनाता है उस टेक्नोलॉजी वो हम जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, हमारे पैसे से बनाता है, तो वो हम सारी चीज़ें फ्री में देते हैं इंडस्ट्री को। तो अगर आप में से किसी भी एंटरप्रेन्योर को डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है ना डीआरडीओ की, उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है फॉर ट्रांसफर, तो आप टीओटी ले सकते हैं डीआरडीओ से। और डीआरडीओ कोई पैसा चार्ज नहीं करता है, बल्कि उनके जो साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के, वो आपके साथ बैठेंगे, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपको बताएंगे कि आप मशीन कहाँ से ले सकते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं, और आप फिनिश गुड्स बनाइए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं जो हिमांशु भाई से बात कर रहा था, तो मुझे बता रहे थे कोविड के समय जो पीपीटी किट है, तो जो पीपी किट है वो पीपीई किट को उसके स्पेसिफिकेशन किसने बनाए, उसका सर्टिफिकेशन किसने किया, वो डीआरडीओ ने किया। अच्छा, पीपीई किट तो बन गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन क्या होता है टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती है। तो 2022 में उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए ये डीआरडीओ ने बनाया। फिर डीआरडीओ ने प्रोडक्ट सर्टिफाई भी करे कि ये प्रोडक्ट में ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो आप वेबसाइट पे जाइए, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।
ईमेल में क्या होगा कि मैं थोड़ा सा पढ़ के और लोगों से, क्योंकि मुझे सब कुछ तो नहीं मालूम है, तो मैं लोगों से कंसर्न व्यक्ति से पूछ के और आपको बता सकता हूँ कि ये पर्सन है और उसको मैं पुश कर सकता हूँ, मेरी मदद करो। अच्छा, उसके बाद ये कुछ पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स का तो कोई मतलब नहीं है कि DRDO ने क्या क्या बनाया है, और आप चाहें तो देख सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं, लेकिन आपको उधर से ही फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, कुछ शायद मेरा दूर से होना, दूर से थोड़ा मुश्किल होता होगा। इससे होगा, इससे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ उधर से करता हाँ ठीक है, नहीं मैं साइड में कर रहा था, बीच में प्रेस करना है। ठीक, तो टेक्नोलॉजी के बारे में ठीक बोला आपने, टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा ना टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज समझना चाहते हैं या हम फ्यूचर के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो मिसाइल है इस पूरी दुनिया में, सबसे पहली मिसाइल बनी थी साजी भाई, वो इंडिया में बनी थी, और वो बनी थी मैसूर में। और टीपू सुल्तान ने इस मिसाइल को यूज़ किया था जो वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे 1792 में, और टीपू सुल्तान को वो लड़ाई हार गए। जब वो हार गए तो ब्रिटिश आर्मी ने वो मिसाइल लेके गए अपने साथ इंग्लैंड, और वहाँ पर ले जाकर उस मिसाइल को उन्होंने डेवलप किया। और उनका एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कॉन्ग्रीव, तो उसने टीपू सुल्तान की मिसाइल को नाम दे दिया कॉन्ग्रीव मिसाइल। और उसके बाद उसने बहुत सारी लड़ाइयों में इसको उपयोग किया। वो सब नाम लिखे हुए हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप ना याद रखिए और आप लोगों को बताइएगा। आप लोगों के सबके रिश्तेदार कहीं कोई ना कोई अमेरिका में तो होगा, ठीक है? तो आप उनको बोलिएगा कि जो अमेरिका का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगीत है, तो राष्ट्रगीत में 5वीं लाइन है, 5वीं लाइन में बोला गया है कि जो ऊपर से रॉकेट्स, रेड ग्लेयर जो है, रॉकेट, लाल रंग के रॉकेट ऊपर से गिर रहे थे, और हमारे जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उन्होंने उससे हमको बचाया। तो उनको बोलिए कि जो रॉकेट के जो रेड ग्लेयर थे वो और कुछ नहीं, वो टीपू सुल्तान की मिसाइल थी, तो हमारी मिसाइल थी जिसको ब्रिटिशर्स ने यूज किया था। हाँ, तो अमेरिकन नेशनल एंथम में भी हम 5वीं लाइन पर हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंस से काम करिए। आप किसी न किसी आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं किसी के राष्ट्रगीत में आप शामिल हो जाएंगे कि हमने उनकी भी मदद करी थी, ठीक है? तो अब आज ना हम सभी लोग बोलते हैं अमेरिका इतना डेवलप हो गया, हम लोग बोलते हैं रशिया इतना ज़्यादा क्यों डेवलप हो गया, तो उसके ना हिस्टोरिकल रीजंस हैं। हिस्टोरिकल रीजंस ये हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें सबसे डेवलप्ड कंट्री थी जर्मनी, और उस जर्मनी को सारी दुनिया ने घेर लिया, और घेरने के बाद ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद जो उनके साइंटिस्ट थे, तो जो रॉकेट साइंटिस्ट थे, हुआ ये था कि जर्मनी ने V1 और V2 रॉकेट्स वो यूज़ करे थे पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट में। तो जब पूरी दुनिया ने जर्मनी को हरा दिया तो उनके जो साइंटिस्ट थे, रॉकेट साइंटिस्ट, मिसाइल साइंटिस्ट, उनको इन्होंने क्या किया कि 2 भागों में डिवाइड किया। अमेरिकन्स ने भी कोशिश करी जितने ज़्यादा पकड़ सकते हो पकड़ लो, रशिया ने भी कोशिश करी जितने ज़्यादा पकड़ सकते हो पकड़ लो। तो उन्होंने डिवाइड किया, दोनों अपनी अपनी कंट्रीज में लेके गए और उनको काम दे दिया कि अब तुम हमारे लिए मिसाइल बनाओगे, और उनको कहा आप यहाँ पर सेफ हो, सिक्योर्ड हो, आपको हम जॉब भी देंगे, आपको हम रिस्पेक्ट भी देंगे, और आपको हम काम करने का मौका भी देंगे। तो आधे लोग चले गए अमेरिका, आधे लोग गए रशिया। तो ये जो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है वो सारे वही लोग हैं। वो आप जो लोग अमेरिका गए तो उसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा वैन ब्राउन। तो ये जो वैन ब्राउन था, ये जो मून के लिए जो अपोलो रॉकेट गया था, ये उसके पीछे था, ये उसने बनाया हुआ था, उसने डिज़ाइन किया हुआ था। तो उनकी शुरू से लेके आखिरी तक की जो टेक्नोलॉजी है सारे जर्मन साइंटिस्ट ने बनाई। और यही बात हुई रशिया में। रशिया में भी जो आप देख रहे हैं ये सब फोटोग्राफ, ये सारे जर्मन थे, और जर्मन ने जाके वहाँ के पर उनकी नागरिकता ले ली, और उसके बाद उन्होंने सारी मिसाइल बनाई और आज ये सब कर रहे हैं। मैं आपको जो ये हिस्ट्री बता रहा हूँ उसके पीछे एक कारण है। आपके पास भी मौका है अभी, यूक्रेन में जो साइंटिस्ट लोग इधर उधर हुए हैं,
आप उसमें से कुछ को पकड़ के ला सकते हैं पकड़ के यानी कि आप उनको पैसे दे के ला सकते हैं, क्योंकि वो लोग बोले ना, वो लोग यूरोप में हायर कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी साइंटिस्ट को पकड़ के लेके आइए, पैसा दे दीजिए उनको, पकड़ के लाने का मतलब है लेके आइए उनको, और उनको यहाँ पर सूरत में बिठाइए, उनको पैसे दीजिए, उनको घर दीजिए, उनको बोलो भाई गुजराती लड़की से शादी कर लो, अच्छा है, अच्छी लड़कियां होती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डाइवोर्स की चिंता नहीं है। हमारे मेहता साहब को देखो, कोई डाइवोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सुरक्षित। और आप यहाँ पर बनाइए, डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करिए। तो हमारा भारत भी 40-50 सालों में, देखिए ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा आपको मजाक के तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन आप उनको ला सकते हैं, लाके यहाँ पे बना सकते हैं, और पूरी दुनिया में आज से 10, 15, 20 साल बाद बेच सकते हैं। और जहां तक बात है कि आप में से कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम अभी मून पे क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक कारण है मून पे जाने का। जब भी हमारा देश, कोई भी कंट्री एक मेगा प्रोजेक्ट लेती है ना, तो मेगा प्रोजेक्ट लेने के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। छोटी टेक्नोलॉजी यानी कि जब हमने चंद्रयान भेजने की बात कर रहे हैं, तो अब हमको ज़रूरत पड़ी रॉकेट बनाने की, हमको ज़रूरत पड़ी वो लॉन्चर बनाने की। उतना बड़ा लॉन्चर आपने देखा ना, कितना बड़ा सैकड़ों मीटर ऊंचा लंबा लॉन्चर बनाने का। तो अब हमको नॉलेज हो गया कि लॉन्चर बनाते कैसे हैं। तो अब उस लॉन्चर के बेसिस पे हम बड़े बड़े ब्रिज भी बना पाएंगे। अब हम बड़े बड़े जो मतलब और भी दूसरी चीज़ें जो होती हैं, आप में से मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो लॉन्चर होता है ना, ये पहले अंदर था, चूंकि पूरा कवर्ड था, फिर उसके बाद वो रेल के ऊपर चलता हुआ वापस वहाँ पर पहुंचा, अपने लॉन्चिंग पैड पे पहुंचा, मूविंग। तो अब आपने वो टेक्नोलॉजी डेवलप करी, रेल वाली टेक्नोलॉजी, कि उतना ऐसी रेल बनानी चाहिए जो उतना वेट ले सके। वो टेक्नोलॉजी जो रॉकेट भी उसके साथ जा रहा है, तो रॉकेट वहाँ पर तो माइक्रोन की बात होती है, फ्यू माइक्रोन, मतलब 1000 होता है 1 मिलीमीटर का, तो वो भी उतना भी एक्यूरेसी होनी चाहिए उसको मूव होने में। अब आपने जो उसको ट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी डेवलप करी, उसको मूव करने की, तो वो टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी? वो टेक्नोलॉजी जाएगी जब हम रेल बनाएंगे, वंदे भारत बनाएंगे, या हम उससे भी फास्टर ट्रेन जब बनाएंगे, या हम वो ट्रेन बनाएंगे जिसमें 500 बोगीज लगे, तो हमको उस टेक्नोलॉजी का काम होगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ रेल का बताया। अब हमने जो रॉकेट बनाया है, तो जो रॉकेट बनाया बहुत बड़ा, तो उसको बनाने की जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, वो टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होगी? वो टेक्नोलॉजी होगी जब हम लोग ये केमिकल इंडस्ट्री, हमारे कहाँ केमिकल इंडस्ट्री वाले भाई कहाँ बैठे थे, हमसे मिले थे उनसे, तो उनको जब टैंक की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि 200 मीटर लॉन्ग टैंक कहाँ से लाएंगे? वो टेक्नोलॉजी जो मून के लिए हमने चंद्रयान बनाया, वो टेक्नोलॉजी यहाँ काम आएगी। फिर उसके बाद जो प्रोपल्शन है उसके अंदर, रॉकेट्स जो प्रोपेलेंट किया हुआ है, उस प्रोपेलेंट को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, वो हम तो मून की बात कर रहे थे, वही टेक्नोलॉजी हम मिसाइल में भी यूज़ करेंगे। वही टेक्नोलॉजी हम जब हम मिसाइल बनाएंगे 20,000 किलोमीटर की, को जरूरत नहीं है 20,000 किलोमीटर की बनाने की, लेकिन अगर कभी बनाने की जरूरत पड़ी तो हमको वो टेक्नोलॉजी काम में आएगी। फिर उसके बाद जब ये रॉकेट ऊपर गया है, तो मोटर सेपरेट होती हैं, जो उसके एक मोटर अलग होती, फिर दूसरी गई, तीसरी गई, तो मोटर को हमने जो रिमोट कंट्रोल से मोटर को सेपरेट करने की टेक्नोलॉजी वो डेवलप करी। फिर उसके बाद यानी कि हमने जो कमांड टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप करी। फिर उसके बाद जब और भी ऊपर गए, तो जो हमारा जो सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट जो है, हम उसको दूर से उसको हम कंट्रोल करेंगे कि हमारी जो कक्षा है वो नीचे सब नहीं, आपके हाथ के पास। तो हमारी जो अर्थ का जो अर्थ प्लेनेट का जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट से हमको मून ऑर्बिट में भेजना है। तो मून ऑर्बिट में यानी कि हमको दूर से कमांड देनी पड़ेगी, तब वो एंटर होगा मून के उसमें। तो हमारी जो कमांड एंड कंट्रोल एंड कमांड टेक्नोलॉजी वो डेवलप हुई। तो हमको एक मून मिशन से मिलियंस ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप करने का मौका मिला। वो टेक्नोलॉजी हम सिविलियन सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। आपको तो मैंने सिर्फ मून का एग्जाम्पल दिया। अभी तो हम जो एक ग्रेविटेशनल वेव है ना, जो एक टेक्नोलॉजी होती है ग्रेविटेशनल वेव को मेजर करने के लिए भी एक बना रहे हैं। तो वो जो सेंटर बना रहे हैं महाराष्ट्र पुणे के पास बना रहे हैं, तो उसको बनाने से हमको जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी वो भी हजारों होगी। तो हम जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उस प्रोजेक्ट से बेसिकली ऑब्जेक्टिव
हमको देखिए, सरकार जब भी कुछ पैसा देगी तो एक ऑब्जेक्टिव तो बनाएगी कि भाई हमको ये काम करना है, लेकिन जो साइड की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी वो हमारे सिविल सेक्टर में होंगे, और जो सिविल सेक्टर जो है वो बाकी पूरी दुनिया में जाके वो टेक्नोलॉजी बेच सकता है, उसको सिविल एप्लीकेशन में उपयोग में ला सकता है। तो इसलिए हमने मून मिशन किया हुआ है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है। और जब हम मून में मैन भेजेंगे या मार्स में, देखिए एक और आपको समझनी पड़ेगी, आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, अगर मून पर कभी हमने पहुंचा दिया अपना रॉकेट, अब आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद जब मून में हम कॉलोनी बनाएंगे तो वहां पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट होगा। टेरिटोरियल डिस्प्यूट होगा मतलब कि ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है, तो हम ये कहेंगे कि हम वहां पहुंचे थे और हमने ये हमारी जमीन इधर से लेके 1000 किलोमीटर ये हमारी, आप समझ गए। तो ये फ्यूचर की बात है, ये डिप्लोमेसी हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में है। हमने अंटार्कटिका में अपना भेजा था, आपको मालूम है ना, अंटार्कटिका में भेजा था लोगों। तो अंटार्कटिका में क्यों भेजा था कि जब वहां पर हमने अपने बना लिया एरिया कि भाई इतना एरिया हमारा है, हमने यहाँ पर पूरा टेरिटरी है हमारी है, क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर कभी ऑयल निकलेगा तो हम भी बोलेंगे भाई यहाँ पर भी हम अपना ऑयल ड्रिल करेंगे, क्योंकि ये हमारा एरिया है, पहले किसी का नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में आती हैं। मार्स में पहुंचेंगे, इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव होगा कि मार्स में पहुंचेंगे। मार्स में पहुंचेंगे, क्यों पहुंचेंगे कि हो सकता है वहाँ पर जो रेयर मेटीरियल लिथियम और जो होते हैं ना ये रेयर अर्थ मटेरियल, वो वहाँ मिलेंगे शायद। तो वहाँ मिलेंगे तो उस पर हम अपना अधिकार बताएंगे कि हम वहाँ पर जो ये हमारा एरिया है। तो हम आज से 100 साल 200 300 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है मून पर जाना। एक दूसरी बात हुई, आप में से पूछा था कि आपका एक और क्वेश्चन था कि हम डिफेंस पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च क्यों करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं DRDO मैंने ज्वाइन किया था, कलाम साहब ने रिक्रूट किया था, तो मेरे भी जब मैं यंग था ना, 21 साल का था, तो उससे दिमाग में हमेशा रहता था कि इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं। तो एक बार हमने पूछ लिया उनसे कि क्यों खर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको दूसरे लोग रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आप वीक हैं तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जाते हैं प्रधानमंत्री दूसरे देशों में, तो उनके प्रधानमंत्री लेने आते हैं उनको एयरपोर्ट के ऊपर। UAE, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, जो हमसे पहले नाराज होते थे, हमको हमारे अगेंस्ट में कुछ बोलते रहते थे, आज हमसे बिल्कुल गले मिलने के लिए तैयार हैं। US के प्रेसिडेंट, हाँ, जब वो मोदी जी देखते भी नहीं है तो भी वो जाके पीछे से ऐसे करके बोलते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ में से मिलते हैं, सामने से मिलते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ आपको इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में 140 माइंड्स रहते हैं, 140 करोड़ माइंड्स हैं, 140 करोड़ नॉलेजेबल इंटेलिजेंट पीपल यहाँ रहते हैं। और इंडिया के पास आर्मी है 15 लाख सर, 15 लाख सोल्जर्स हैं। 15 लाख सोल्जर आप दुनिया में कहीं भी जाके कुछ भी ऑक्युपाई कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक डिवीजन होती है 15,000 सोल्जर्स, एक डिवीजन जो है वो गुजरात जैसे बड़े स्टेट को कैप्चर करने के लिए सफिशिएंट है। अब आप सोचिए 15 लाख लोग क्या कर सकते हैं, तो ये इतनी बड़ी ह्यूज आर्मी है हमारी। तो इस आर्मी को सिर्फ हम सोल्जर्स को सिर्फ आर्मी नहीं बोलते हैं, सोल्जर्स को इक्विपमेंट चाहिए, मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए, सोल्जर्स को ट्रेनिंग चाहिए, सोल्जर्स को एक मतलब उनको स्किल चाहिए, उनको हमको बेस्ट इक्विपमेंट देने पड़ेंगे जिससे कि वो अच्छा। और बेस्ट इक्विपमेंट क्या है? बेस्ट इक्विपमेंट अभी वो स्मॉल गन, लाइट मशीन गन वो नहीं है, उनको आजकल उनको ऑपरेट करते आना चाहिए, जो उनके पास सेंसर्स हैं, बॉडी में लगे हुए सेंसर्स, उनके पास जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे हुए हैं। तो हर सोल्जर को एक साइबर सोल्जर होना पड़ेगा, उसको नॉलेज होना पड़ेगा कंप्यूटर के बारे में, उसको नॉलेज होना पड़ेगा कि कैसे वो अपने को डिफेंड करे, कैसे अटैक करे। तो उसके लिए ज़रूरत है एक नॉलेज बेस्ड सोल्जर बनाने की। 14 लाख 15 लाख नॉलेज बेस्ड सोल्जर क्या करेंगे आप कल्पना कर सकते हैं। तो जो कमजोर होता है ना
पाकिस्तान का है, वो इमरान खान था, कोई भी उसको तो पैसे भी नहीं थे वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस में जाने के लिए, याद है ना आपको? उसके पास कंट्री ने बोला था पैसे नहीं, तो सऊदी अरेबिया के जो प्रेसिडेंट प्रिंस है रॉयल फैमिली, उन्होंने अपने प्लेन में बिठा के लेके गए थे और कुछ आपस में बात हुई, लड़ाई तो उसको छोड़ के आ गए थे इमरान खान को। तो उसको फिर आपको मालूम होगा, आप इंटरनेट में पढ़िएगा, छोड़ के आ गए तो उसको बेचारे को जो पब्लिक वाला प्लेन होता है जिसमें हम लोग चलते हैं, उसमें बेचारे को उसमें आना पड़ा। तो ये ने बचा लिया अभी। हाँ, अभी IMF ने बचा लिया। तो ये कितनी इंसल्टिंग बात होती है। तो आपको तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो इसलिए मिलिट्री स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक और एडवांटेज है आपको मिलिट्री स्ट्रांग होने का कि आप अपने आर्म्स दुनिया में बेच सकते हैं। जब आप बेचते हैं ना आर्म्स, तो आपने डिफेंस डिप्लोमेसी बोली थी, वर्ल्ड की डिफेंस डिप्लोमेसी। आप किनको बेचेंगे आर्म्स? जो आपके फ्रेंड्स हैं। आप अपने एनिमी को कभी भी आर्म्स नहीं बेचेंगे। तो जब आप फ्रेंड्स को आर्म्स बेचेंगे तो सारी दुनिया आपका फ्रेंड होना चाहेगी। अगर आपके पास सबसे अच्छी इक्विपमेंट, वो बोलेंगे मैं भी तो आपका दोस्त हूँ, मेरे को दे दो, ठीक है? अच्छा, अगर आपने आर्म्स दे दिए, एक आर्म्स की, एक इक्विपमेंट की, एक मिसाइल की लाइफ होती है 30 साल 40 साल। तो कम और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक बार आपने मिलिट्री इक्विपमेंट बेच दिया, उसके बाद आपको उसके स्पेयर्स चाहिए, उसके बाद उसको मेंटेन करना है। तो आप स्पेयर से कंट्रोल कर सकते हैं उसकी पॉलिसी, आप उसके मेंटेनेंस से कंट्रोल कर सकते हैं उसकी पॉलिसी। दूर बैठा हुआ अर्जेंटीना हमसे वो LCA खरीदेगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदेगा, खरीदने के बाद लेकिन हमारा वो दोस्त हो जाएगा, बोलेगा कि यार हम तो आपके दोस्त हैं, ठीक है आज दोस्त हैं, कल हम उनको आपका कपड़ा बेचेंगे, टेक्सटाइल, कि अर्जेंटीना को बोलेंगे अरे आप तो मिसाइल ये खरीद रहे हो एयरक्राफ्ट, चलो कपड़ा भी ले लो, ये भी देखो, हमारे डायमंड भी देखो। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप सीधे जाएंगे तो हो सकता है आपको परमिशन ही ना मिले खोलने की, वो लोकल गवर्नमेंट आपको इतना तंग करेगी कि आप खोल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो हम वहाँ पर हमारे डिफेंस बिजनेस चल रहा है तो आपकी सारे पॉलिटिशियन से, वहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनसे दोस्ती होगी। तो ये काम होता है डिफेंस डिप्लोमेसी का। डिफेंस डिप्लोमेसी का कि आप उनके अंदर एक स्टेक होल्डर क्रिएट करते हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको आप इस तरीके से मैनेज करते हैं कि वो आपके फ्रेंड्स बन जाएं, आपके ऊपर डिपेंड हो जाएं। अभी हम US के ऊपर डिपेंड हैं, अभी हम रशिया के ऊपर डिपेंड हैं, तो हम इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम सुपर पावर हो जाएंगे नॉलेज में और टेक्नोलॉजी में, तो हम डिक्टेट करेंगे, नहीं लड़ो मत आपस में, हम दोस्ती कराते हैं, हम बात करते हैं, इधर आओ दोनों का, तुम इधर आओ, तो बैठ क्या क्यों लड़ाई करो, चलो सेकंड करो जाओ, तो बोले नहीं दोनों जाओ। ये है आपकी ताकत, ये है आपकी डिफेंस डिप्लोमेसी। तो जब भी आप गड़बड़ करेंगे तो ठीक बोल रहा हूँ। तो ये कितनी देर है मुझे बोल सकता हूँ, मैं तो आई एंजॉय टॉकिंग। तो ये हो गई डिफेंस डिप्लोमेसी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहा डिफेंस इंडस्ट्री क्यों? देखिए, कोई भी देश लड़ना नहीं चाहता है। आप किसी भी सोल्जर सर आप लड़ना चाहते हैं क्या? नेवर। जब भी कोई लड़ाई होती है, हमारी विडोज होती हैं, बच्चे ऑर्फन अनाथ हो जाते हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, बिल्डिंग्स जिनको बनाने में हमको 2 साल 5 साल 10 साल, जो ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, वो खत्म हो जाती हैं। फिर जो मनी हमको एजुकेशन में लगानी है, जो मनी हमको अपने हेल्थ सेक्टर में लगानी है, हमको अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए लगानी, वो मनी हमको डिफेंस के लिए लगानी पड़ती है। तो कोई लड़ना नहीं चाहता, हम भी नहीं लड़ाई लड़ना चाहते, पाकिस्तान भी नहीं लड़ाई लड़ना चाहता, चाइना भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता लड़ाई लड़ना। तो लड़ाई ना हो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आप फिर से याद करिए कलाम साहब का नारा, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जिस दिन हम ताकतवर हो जाएंगे उस दिन हमसे कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहेगा। जो गरीब होते हैं, जो कमजोर देश होते हैं, वो लड़ते हैं। अफगानिस्तान में लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि वो लोग गरीब हैं। सीरिया में लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि वो लोग गरीब हैं। आप बताइए फ्रांस में लड़ाई क्यों नहीं हो रही किसी से? यूके की लड़ाई क्यों नहीं हो रही है? जापान की लड़ाई किसी से क्यों नहीं हो रही है? US क्यों नहीं लड़ रहा है? इसलिए कि वो लोग स्ट्रांग है। तो मिलिट्री का स्ट्रांग होना, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब स्ट्रांग होंगे लड़ाई नहीं होगी। आप खुद देखिए, आप जिस जगह रहते हैं, आप अगर पॉश कॉलोनी में रहते हैं, नेबर्स जो हैं एक दूसरे को स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, वो लोग लड़ाई नहीं करते। लेकिन स्लम में चले जाइए, स्लम में माँ बाप भाई बहन वो लोग भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, नेबर से तो चाकूबाजी होती है। तो इसलिए कि वहाँ पे पॉवर्टी है।
तो अगर आप चाहते हैं कि लड़ाई ना हो तो आप रेवेन्यू जनरेट करिए, रिच स्टेट बनाइए, रिच कंट्री बनाइए, लड़ाई नहीं हो। तो कमिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन, ये सब जाना है आपको। एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था 91 में और 2003 में जो इराक वॉर हुआ। तो इराक में जो लड़ाई हुई थी, इसके पीछे एक बैकग्राउंड था। इराक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री थी उस समय, और उनके जो लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर सद्दाम हुसैन, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर था वो, और उसने अपने कंट्री को एक एक इंच को डिफेंड करने के लिए पूरा प्लान किया हुआ था। उसके पास ऑयल था, उससे एक गलती हो गई या जानबूझ के गलती करवाई गई, ये मालूम नहीं है। तो जो गलती हुई कि कुवैत में उसने अंदर चला गया। अब वो बोला कि मेरे को उन्होंने इनवाइट किया, ठीक है, कुवैत के लोगों ने बोला कि आप यहाँ आ जाओ, जबकि बाकी पूरी दुनिया ने बोला नहीं नहीं तुम जबरदस्ती एंटर हुए हो। तो खैर नहीं गए। अब उसके अगेंस्ट में जो वॉर हुआ, तो यूएस ने क्या किया कि अपना जो उनका जो फ्लीट थी वहाँ पर सी के पास भेज दी और थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल फायर करी। जो थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल फायर करी पर्शियन गल्फ से, तो इराक के जितने भी कमांड कंट्रोल सेंटर, ब्रिजेस और जो एयरपोर्ट्स थे, मिलिट्री एयरपोर्ट्स, और जो जहाँ पर भी जैसे जैसे उसको कमज़ोर कर सकते थे वो कर दिया, 24 घंटे के अंदर ख़त्म। और ये जो मिसाइल्स गई हैं, ये आपने सुना होगा टोमाहॉक मिसाइल, टोमाहॉक अभी भी यूज़ होती है, अमेरिका टोमाहॉक देता है लोगों को। तो ये टोमाहॉक मिसाइल यूज़ करी, उसके बाद वो पूरा इराक ख़त्म हो गया 24 घंटे के अंदर। लैंड फोर्सेज एंटर हुए, पूरे इराक के ऊपर कब्जा हो गया 24 घंटे के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमारे ना मिलिट्री लीडर्स देख रहे थे, साइंटिस्ट भी देख रहे थे। तो उस समय डॉक्टर कलाम जो है देख रहे थे, और डॉक्टर कलाम जब 93 में गए वहाँ पर, तो जाने के बाद उन्होंने, आपको याद होगा 90 में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ बड़ा भारी क्राइसिस हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। तो हमारे पास जो ऑयल था वो भी एक हफ्ते, जो फॉरेन एक्सचेंज थी वो एक हफ्ते की थी, और रशिया जो था वो भी सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ था, तो उसके पास भी पैसे नहीं थे। तो लेकिन दोनों के पास नॉलेज था, ऊपर बढ़ने की इच्छा थी। तो और कलाम साहब जब 93 में विजिट कर रहे थे, तो रशियंस ने उनको दिखाई, एक इंजन दिखाया, आधा कंप्लीट था। तो उन्होंने कहा ये आधा कंप्लीट इंजन है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसके बारे में, पैसे ही नहीं हमारे पास। तो अगर हम दोनों मिल के कुछ करें तो कुछ हो सकता है। अब देखिए, दो पॉपर लोग, दो दिवालिया बैंकरप्टेड लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड की बेस्ट फैक्ट्री बनाएंगे, बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे और पूरी दुनिया में बेचेंगे और वो सबसे अच्छा होगा और हमको इससे बहुत पैसा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो दो इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो बात कर सकते हैं आपस में। जो डॉक्टर कलाम थे उस समय तो साइंटिस्ट थे, लैब के डायरेक्टर थे, बाद में फिर वो हमारे साइंटिफिक एडवाइज़र बने, सेक्रेटरी बने, उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट बने। तो लेकिन उनकी जो सोच थी ना वो बहुत बड़ी थी, शुरू से ही वो बहुत बड़ा सोचते थे। एक और दूसरा जो आपको एक देख रहे हैं, ओल्ड मैन है, जैफ्रो मोव नाम है उनका। तो वो लेडी और वो दूसरे एक वो भी जनरल सुंदरम उनका नाम, उनके बीच में खड़े हुए हैं। तो ये येफ्रोमो भी, इनको जो है फिर हीरो ऑफ सोवियत यूनियन का अवार्ड मिला, मतलब ये हमारे भारत रत्न के बराबर होता है। और हीरो ऑफ रशिया का भी अवार्ड मिला, मतलब एक आदमी को दो, उनके एक ही आदमी है जिंदा जिसको दोनों अवार्ड मिले हुए, हीरो ऑफ सोवियत यूनियन का और हीरो ऑफ रशिया का। तो वो भी थे उनके साथ, वो सूद बात कर रहे थे। खैर दोनों ने डिसाइड किया कि हम मिसाइल बनाएंगे, फिर एक इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया दोनों ने। अच्छा, उससे फिर ब्रह्मोस का जॉइंट वेंचर बना, और ये जॉइंट वेंचर बना, दोनों ने डिसाइड किया कि इंडिया ने कहा पैसे मेरे पास नहीं है, रशिया ने कहा मेरे पास भी पैसे नहीं, लेकिन क्या करते हैं कि हमारे पास ना सोवियत यूनियन का लोन था, तो वो लोन हमको रीपे करना था। तो उस लोन को हमने कहा कि लोन आपको देंगे नहीं पैसे, इस पैसे को आपकी इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 50.5 हमारी होगी, 49.5 आपकी होगी। अच्छा, रशियंस उस समय पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा एग्री कर लो जो भी है, कम से कम थोड़े बहुत पैसे तो निकल आएंगे, लोन वाले पैसे वापस हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से, और फिर दोनों ने, ये ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। इसमें था कि आधी टेक्नोलॉजी आप डेवलप करोगे,
आधी टेक्नोलॉजी मैं डेवलप करूँगा। और ये दोनों टेक्नोलॉजी हम डेवलप करके और हैदराबाद में जो हमारा मिसाइल इंटीग्रेशन सेंटर है वहाँ पर लेके आएंगे और मिसाइल यहाँ पे बना के फिर डिलीवर करेंगे भारत के लिए, रशिया के लिए और दूसरे देशों के लिए। तो ये एक 93 में उन्होंने जो ड्रीम किया था वो ड्रीम 2023 में सच हुआ जब हमने पहला एक्सपोर्ट फिलीपींस को किया, फिलीपींस को साइन किया। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि कोविड के समय मतलब 20 से लेके और 22 तक, नहीं 19 में हुआ था, कोई 19 से लेके 21 तक, नवंबर 21 में मैं रिटायर हुआ। तो मैंने फिलीपींस की उस समय फिलीपींस की कम से कम मैंने 15-20 बार ट्रैवल किया। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर पर बैठे हुए थे और मेरी वाइफ बैठी है, वो बताएंगे आपको, और मैं ट्रैवल कर रहा था और हर बार वो बोलती थी कि मर जाओगे, कोविड पकड़ लिया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा एक ड्रीम है कि ब्रह्मोस को मैं एक्सपोर्ट करूंगा। तो ये मेरा एक ड्रीम था, बड़ा बिगर ड्रीम। लोग बोलते हैं ना जैसे कलाम साहब का ड्रीम था कि ये करना, तो मैंने कहा नहीं, मेरा ड्रीम है कि इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा। आज तक भारत में कभी एक्सपोर्ट हुआ नहीं है, मैं एक्सपोर्ट करूंगा। तो फिलीपींस, अगर हम दिल्ली से फिलीपींस जाते तो हमको पड़ता था लगभग 8.5 घंटे की जर्नी थी, 8-8.5 घंटे की जर्नी। लेकिन कोविड के समय कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, सारी अलग अलग फ्लाइट चलती थी। तो हम यहाँ से जाते थे दुबई और दुबई से जाते थे फिलीपींस, मनीला। तो हमको लगभग ये करीबन जाने में 30 घंटे 32 घंटे लगते थे और हर एयरपोर्ट पे 4 घंटे, मतलब मनीला में जाते थे, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी तो भी हमको 4 घंटे वेट करना पड़ता था मास्क पहन के कि वो टेस्ट करने के लिए कि कोविड तो नहीं है। तो उसके बाद पूरे समय ना तो खा सकते थे ना पानी पी सकते थे, मास्क लगा के, डबल मास्क लगा के बैठते थे एयरक्राफ्ट के अंदर, पता नहीं कोविड ना हो जाए। तो ये डर था। आखिर में कोविड हो ही गया। बाद में कोविड हुआ, मैं उस समय इंडोनेशिया से लौट के आया था, वहाँ भी हम कर रहे थे कोशिश, कोविड हो गया। तो वो तो देखिए कोविड हुआ, जब कोविड हुआ तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों को हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे थे। लेकिन जो मेरा जो डेडिकेशन था उसको देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को एम्स में एडमिट कराया और उस जगह एडमिट कराया जहाँ पर मेरे पड़ोसी जो हैं वो मनमोहन सिंह जी थे। मतलब कि 7th फ्लोर में एक और मनमोहन सिंह जी थे 701 रूम नंबर में और 710 में मैं था। मतलब इस देश में मुझे वो किया जो मतलब कोई कर ही नहीं सकता था, जान बचाई सबसे बड़ी बात। इसका कारण ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मालूम था कि ये व्यक्ति जो है वो मिसाइल बेचने के लिए ही यहाँ पूरा घूम रहा था, शायद उस समय ही पकड़ लिया कोविड। तो लेकिन जब कुछ ड्रीम होता है तो उस ड्रीम के पीछे पड़ जाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि अगर आपने इफ और बट लगा दिया तो फिर वो खत्म, फिर वो ड्रीम आपका पूरा हो नहीं सकता। तो वो ड्रीम तो पूरा हुआ। और जब भी लोग बात करेंगे कि पहला एक्सपोर्ट कब हुआ था तो यही बोलेंगे ब्रह्मोस फिलीपींस। और ये जो एक्सपोर्ट है ये एक दिन में नहीं होता, इसको करने के लिए हम लोगों ने करीबन 5 साल 6 साल काम किया, 5 साल 6 साल। और ऐसे काम किया है कि मतलब फिलीपींस सरकार का कोई भी आता था तो उसको हम अपने मतलब शोल्डर पर बिठा के पूरा घूम के दिखा देते कि भाई ये खरीद लो, बहुत अच्छी है, दुनिया की बेस्ट है। और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ी, क्योंकि हमारा देश डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के लिए जाना ही नहीं जाता है। तो जब आप पहली बार एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। मुझे अच्छे से समझ में आता है जब आपने सबसे पहली बार आप जब डायमंड बेचने गए होंगे सूरत के लोग, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी आपको। आपने वो काम किया है जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। आपने इजराइल को डिफीट किया है उनके गेम में, अदरवाइज डायमंड बिजनेस इजराइल ने आपको उनका होल्ड था पूरा, और पूरा का पूरा बिजनेस आपने इजराइल से उठा के यहाँ ले आए। मैं गया था इजराइल तो वो लोग बोल रहे बता रहे थे कि बंद हो गया जो उनका डायमंड, वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं कोई बिल्डिंग है बड़ी सी, वो मार्केटिंग करते हैं डायमंड बूस्ट, हाँ वो बंद हो गया, बंद कर दिया। तो बोले किसने बंद किया, तो बोले आप लोगों ने बंद किया। सूरत के आप लोगों ने वो काम कर दिया। तो वो काम आप लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी करिए, आप कर सकते हैं। तो अब ये कुछ ब्रह्मोस के बारे में है कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या क्या कर सकती है। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल बेसिकली क्या है, हवाई जहाज के समान है, एयरक्राफ्ट के समान। एयरक्राफ्ट के समान बस ये कि उसके अंदर पायलट नहीं है, उसके अंदर वॉरहेड है और आप उसको जहाँ भेजना चाहें जहाँ तो जाके और बस हिट कर सकती है।
तो ये काम है। तो आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए ये मिसाइल पूरी, और जो ये हमारा ही शिप था, तो ये शिप ना 5000 टन का स्टील था, और इसको शिप को 2 भागों में टूट गए, 2 भागों में टूटा, और 5 मिनट के अंदर ये शिप डूब गया। तो आप समझ सकते हैं ये डूबता हुआ कि एक मिसाइल एक शिप जो होता है वो बहुत महंगा होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का होता है, उसको एक मिसाइल जाके हिट कर सकती है, तोड़ सकती है। इस मिसाइल के बारे में एक एडमिरल यानी कि जो नेवी के ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि सुदीप, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक मेरे सारे लोग मेरे फ्रेंड्स होते हैं। तो मैंने पूछा, मुझे समझ में नहीं आया, क्यों? तो बोले, जब मैं चलता हूँ ब्रह्मोस लेके, तो कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरा दुश्मन बन जाए। इसलिए मेरे सारे दोस्त होते हैं 100 किलोमीटर, क्योंकि 300 किलोमीटर तो इसका रेंज, डिक्लेयर्ड रेंज 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर डायमीटर लगा लीजिए, 600 किलोमीटर तक कोई मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। तो सब बोलते हैं फ्रेंड्स। फिर ये एक हमने मिसाइल फाइट किया था लैंड से, तो ये हमने विदाउट वॉरहेड किया था अंडमान में, कि मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर। देखिए वो एक ना फ्लैग बने हुए, उसके सेंटर में जाके देखिए हिट किया। हाँ, अब दूसरा जो है वॉरहेड के साथ हमने दूसरे दिन उसे हिट किया, सेम जगह जाके उसने उसे हिट किया, सेम जगह। तो ये प्रिसीशन है। अच्छा, अब आपको प्रिसीशन की जो मतलब डेफिनेशन है, थोड़ा मैं वो बताता हूँ, क्योंकि आप लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप एक गन से फायर करते हैं, तो लाइट मशीन गन से फायर करते हैं, 500 मीटर पर अगर आपने फायर किया, 400 मीटर किया, तो वो जो टारगेट होगा, टारगेट से 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर थोड़ी सी डेविएट होती है। अगर 200 मीटर में 5 मिलीमीटर डेविएट होती है, तो आप लगा लीजिए कि जब ये 300 किलोमीटर चलेगी तो कितना डेविएशन आएगा, ये किलोमीटर में डेविएशन आता है। लेकिन इस मिसाइल से जब आप जाते हैं तो मिलीमीटर का भी डेविएशन है, जाके सीधे सेंटर में हिट कर रही है, वो भी 300। तो ये प्रिसीशन जो है कैसे आया? ये प्रिसीशन आया इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण, ये प्रिसीशन आया आपके जो सॉफ्टवेयर है उसके कारण। तो ये सारी की सारी नॉलेज ड्रिवन चीजें हैं। तो जिस दिन आप मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम बना लेते हैं, तो उसी दिन आप कार जो ऑटोनोमस कार है, जो गूगल कार बना रहा है या बाकी जो कार, उसका भी आप मैनलेस कार बना सकते हैं। तो शुरू में एक्सपेंसिव होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीपर हो जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका मैंने एक और आंसर दिया कि क्यों डिफेंस टेक्नोलॉजी में इतना पैसा खर्च कर रहा, क्योंकि हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी से सिविल सेक्टर में भी आ सकते हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा लेक्चर है, तो आप जब बोलेंगे ये कम से कम मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि ये काफी लंबा है। अच्छा, अब ये तो हमने क्या किया था, ब्रह्मोस को एयर लॉन्च वाला किया था। तो एयर लॉन्च जब हमने मिसाइल करी, तो ये जो ब्रह्मोस थी आपने शिप से देखी, फिर उसके बाद आपने लैंड टू लैंड देखा, फिर जब इस मिसाइल को हमको एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर रहा था, तो इस मिसाइल का वेट था 3000 किलोग्राम्स। तो 3000 किलोग्राम्स को रिड्यूस करना पड़ता है। आप जाते हैं जब एयरक्राफ्ट में, तो जो पैसेंजर एयरलाइंसेस हैं पर किलोग्राम से आपको चार्ज कर देते हैं। 1 किलोग्राम ज़्यादा है तो आपको 400 रुपये और निकालिए। तो इमेजिन करिए जब डिफेंस का यूज़ करेंगे और मैं अगर 1 किलोग्राम भी कम कर दूँ तो कितना फ़ायदा होगा उसको। तो हमने रिड्यूस किया लगभग 800 किलोग्राम्स। तो 800 किलोग्राम्स रिड्यूस करने के लिए हमने उसके मटेरियल चेंज करे, फिर उसके बाद हमने उसके अंदर जो कई सब सिस्टम थे उनको भी रीडिज़ाइन किया, जिससे उसका वेट कम हो जाए। तो ऐसा करते करते एक तो हमने मिसाइल का वेट कम किया, दूसरा जिस एयरक्राफ्ट में लगाना था सुखोई 30 में, तो उसमें मिसाइल को हैंग करना पड़ता है। तो उसमें जो हार्ड पॉइंट्स थे वो एक ही हार्ड पॉइंट था, और एक हार्ड पॉइंट था। आप देखिए सुखोई 30 में अगर एक हार्ड पॉइंट है, यानी कि ये बेसिकली आप देखते हैं ना एयरक्राफ्ट, तो ये होता है अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे स्ट्रक्चर से ब्रिजेस के स्ट्रक्चर देखे ना आपने, और उसके ऊपर स्किन होती है, उसके ऊपर हम शीट लगाते हैं। तो अब अगर आप इसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं
तो आपको पूरा स्किन कट करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी बेसिकली। सर्जरी करके फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स लगे हैं, मैकेनिकल एलिमेंट्स, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिवेल्ड करना पड़ेगा। रिवेल्ड करने के बाद फिर उसके बाद आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे जो आपने एयरक्राफ्ट बनाते समय टेस्ट किए थे, वो सारे के सारे टेस्ट आपको एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन के बाद करने पड़ेंगे। तो हमने ये काम जब रशिया से पूछा तो उन्होंने कहा $200 मिलियन। $200 मिलियन बहुत होता है पैसा, लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इनको हमने अप्रोच किया तो उन्होंने पूछा कितना पैसा दोगे। हमने कहा तो कुल मिला के 200 करोड़ है। 200 करोड़ में से आप 150 करोड़ ले लो, बाकी 50 करोड़ हमको दूसरे कामों के लिए भी ज़रूरत है। तो बहुत सारी उन्होंने भी उसको एक चैलेंज के रूप में लिया कि ठीक है, कोई नहीं कर रहा है दुनिया में तो हम करेंगे। तो HAL ने और DRDO ने बहुत सारे जितने भी एयरक्राफ्ट एजेंसीज थी इंडिया के अंदर, HAL, फिर NAL नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, फिर IISc बैंगलोर, IIT मुंबई, फिर जो हमारी DGAQ हैं, द डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एजेंसीज, DG MSQA, बहुत सारी एजेंसी जो थी इन सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा कि भाई ये चैलेंज ये बनाना है इंडिया में, और किसी ने बनाया नहीं है दुनिया में। अगर हम बना लेंगे तो हम दुनिया का पहला कंट्री होंगे जिसने इतनी हैवी मिसाइल बनाई है, वो भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो इस काम में हम लोगों को लगभग 3-4 साल लगे, सक्सेसफुली बना दिया। और जिस दिन एयरक्राफ्ट उड़ाया है तो उस दिन सारे लोगों का, जो HAL के चेयरमैन थे और मैं बैठा हुआ था, तो हम लोगों को लग रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ होता है, क्योंकि 400 करोड़ का एयरक्राफ्ट है, पायलट है, उसकी लाइफ, 2 एयरक्राफ्ट पायलट उसमें गए हुए हैं, अगर कुछ होता है तो सीधे की सीधे आप, अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप रिजाइन करिए, कर जाइए, बेस्ट चीज़ है। और उसके बाद इंक्वायरी भी होगी क्यों हुआ। तो एक तो डर भी था, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि हमने बहुत सारी टेस्ट करे हुए थे कि ये हो जाएगा। तो फिर एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद ये तो मिसाइल के बारे में, और जब उसके बाद जब हमने मिसाइल को टेस्ट किया तो ये मैं आपको एक एयर टू सी लॉन्च दिखाना चाहता हूँ कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो ताकत है, वो आपको समझ में आएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत हमारी जो एयरफोर्स है इसकी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये एक टेस्ट शिप होता है, तो उसको जाके मिसाइल ने हिट किया। अच्छा, अब आप देखिए सुखोई 30 जो है वो एयरक्राफ्ट, उसकी रेंज लगभग 3400 किलोमीटर्स है। इसका मतलब है कि ये 1700 किलोमीटर्स जा सकता है मिसाइल को फायर करके, तो मिसाइल और 300 किलोमीटर जाएगी, यानी 2000 किलोमीटर जाके और वापस आ सकता है। तो अगर आपको रिफ्यूल कर दें तो अनदर 3300 किलोमीटर ऐड हो जाता है। फिर अगर उसको लौटते समय भी फिर रिफ्यूल कर दें तो 3400 किलोमीटर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इस मिसाइल से आपको अगर आज अमेरिका बोलता है ना कि आप लोग पढ़ते होंगे अखबार में कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब पहले हम इंडियन ओशन की बात करते थे, अब वो बोला तुम पैसिफिक ओशन की भी बात करो, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, तो इन दोनों में अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? सिक्योरिटी प्रोवाइड सिर्फ शिप से नहीं कर सकते हैं, वॉरशिप से, हमको एयरक्राफ्ट से भी करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पर इस मिसाइल का रोल होता है कि जाके ये मिसाइल बता सकती है कि ऑस्ट्रेलिया तक आपको सेफ्टी दे सकती है, यहाँ पर अफ्रीका तक जाके आपको सिक्योरिटी दे सकती है, फिर जो चाइना सी है वहाँ भी जाके सिक्योरिटी दे सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। फिर वही बात है, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जब आप ताकतवर होंगे तभी आपको पूरा वर्ल्ड रिस्पेक्ट करेगा। अब हमारी जो एयरफोर्स है उसने साउथ इंडिया में एक जगह पूरी स्क्वाड्रन लगा दी है। वो तो न्यूज़पेपर में, मैं आपको कोई सीक्रेट चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं वही बात बताऊंगा जो अखबारों में छप चुकी है और तो यूट्यूब में है। क्योंकि मैं अभी भी जो है वो, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कभी कुछ लीक नहीं, मुझे मालूम है क्या बता सकता हूँ क्या नहीं बता सकता, तो आपको बिल्कुल वही बात बताऊँगा जो न्यूज़पेपर में है। तो एयरफोर्स ने वहाँ पर स्क्वाड्रन यानी
कभी कभी इसमें 26 एयरक्राफ्ट होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी 22 होते हैं, तो वो वहाँ पर डिप्लॉय करें। वो डिप्लॉय, तो अब हमको सिक्योरिटी मिल गई बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, और अगर ये लोग बात करें पैसिफिक ओशन की तो वहाँ तक की सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ऑयल जाएगा हमारा मिडिल ईस्ट से लेके और फॉर ईस्ट कंट्रीज तक, तो इंडोनेशिया तक या सिंगापुर तक, तो हम उसको एश्योर कर सकते हैं कि तुम डरो ना, अपना शिप लेके जाओ, और इंडिया डिक्लेयर कर देगा कि ये हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, किसी ने इंटरफियर किया तो इट विल बी डिफरेंट केस। तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए हैं आप पूरे वर्ल्ड में। तभी हमारे प्रधानमंत्री को जब लोग जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के लोग रिस्पेक्ट देते हैं, कोई पैर पड़ता है, एक प्रधानमंत्री ने तो उनके पैर भी पड़ते हैं, वो विदेशी हैं, उनको मालूम है पैर पड़ने का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उन्होंने पैर इसलिए पड़े थे कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट, कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने देश को 10 साल के अंदर 50 साल से ज़्यादा डेवलपमेंट करके दिखा दिया, आगे इतना लेके गया, और शायद और दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे वो इसको और आगे ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक सॉलिड बेस तो दिया। तो ये मैंने आपको, अब मैं आपको एयर टू लैंड बताता हूँ। तो ये एयर टू लैंड है, इसमें ये एयर से लॉन्च हुआ, एयर से ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद अब बूस्टर शुरू हुआ, बूस्टर शुरू होने के बाद आप देखिए ये यहाँ जाके तो वो जो हट है वो टारगेट नहीं है, हट तो बनाया था टारगेट डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ठीक है। बीच में जो फ्लैग देख रहे हैं ना, वो 4 फ्लैग हैं, उसके सेंटर में जो है वो है टारगेट। तो ये अब देखिए आपका रोल क्या है, आपका ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका टेक्नोलॉजी में रोल क्या है। टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, अलग अलग होती हैं। कुछ होती हैं डिज़ाइन इंजीनियरिंग होता है, कुछ होता है वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है। फिर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी अलग अलग लेवल का होता है कि एक आप बेसिक कंपोनेंट बनाते हैं, एक आप थोड़ा सा एडवांस कंपोनेंट्स बनाते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स बनाते हैं। फिर होता है सब सिस्टम लेवल, फिर होता है असेंबली लेवल। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है एयरक्राफ्ट का। तो हमारी कंट्री में अभी भी इंजीनियरिंग में तो हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, अगर कुछ डिज़ाइन करना है तो हम लोग अच्छा डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास IITs हैं, ISCs हैं और जो NITs हैं, तो ये लोग बहुत अच्छी डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, फिर आती है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात, तो वो भी हम कर लेते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। जहाँ बात आती है असेंबली की, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ पर चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कई प्रकार के हैं। अगर हम डिज़ाइन कर भी लेंगे, असेंबली कर भी लेंगे, तो हमको ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो एक प्राइवेट कंपनी है, उसको ऑर्डर नहीं है उसके पास, तो वो अपने एम्प्लॉई को सैलरी कैसे देगा। और 2 महीने 4 महीने अगर आप अपने रिजर्व से अगर आप पैसे दे भी देंगे, तो 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल आता है कि गवर्नमेंट को क्विक डिसीजन देना कि हमको ये ऑर्डर करना चाहिए, जल्दी से ऑर्डर करें, जल्दी से ऑर्डर, जिसमें हमारी इंडस्ट्री उसको इकोनॉमिकली बना सके। तो यहाँ पर आपकी चैम्बर का रोल आएगा कि चैम्बर जो है आपके इन्फ्लुएंस करे, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं कि भाई जल्दी करो। तो मनी तो बहुत है, मतलब आपको मैंने बताया 4 लाख करोड़ पैसा है, लेकिन उसमें से कितना आप यहाँ ला सकते हैं, तो वो आपकी नॉलेज, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, आपका नेटवर्क और आपका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, डिलीवरी टीम, उन सब के ऊपर डिपेंड करती है। और बहुत लुक्रेटिव मार्केट है अगर आप इस मार्केट में एक बार आ गए। देखिए, बात यूक्रेन वॉर से शुरू हुई थी। यूक्रेन में UAV यूज़ हो रहे हैं, मिसाइल यूज़ हो रही हैं, और भी साइबर टूल्स यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप इसमें एंटर हो गए तो आपको प्रॉफिट बहुत होने वाला है। आप एक बार एक चीज़ आपने बेच दी ना किसी को, किसी भी सर्विसेज को, तो उसके मेंटेनेंस से और उसके स्पेयर से ही आपका सारा जीवन चलता रहेगा, पूरा चलता रहेगा। एक बार आपको एंट्री होने की जरूरत है बस। और इसके अलावा ये स्लाइड को छोड़ देते हैं, उसको भी जान लेते हैं। और टाइम गुड, और मेरा भी टाइम हो गया।
ये लास्ट स्लाइड है, आप नहीं भी देते तो देखिए ये मेरी बहुत फेवरेट स्लाइड है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जरूर ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल है, और ये जो वाक्य देख रहे हैं ये आपको महर्षि पतंजलि ने हमको बताए हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर आप किसी बड़े उद्देश्य को ले लेते हैं, अगर आप किसी ऐसे उद्देश्य को लेते हैं जो बहुत असंभव दिखता है, जो बहुत मुश्किल दिखता है, और आपको लगता है कि आप कर नहीं सकते, अकेले नहीं कर सकते हैं, तो तब क्या होता है कि हमारी जो छुपी हुई शक्तियाँ होती है ना, हमारे जो एंसेस्ट्रल आपके जो पूर्वज हैं ना, जिन्होंने आपको पैदा किया है, उनका जो आशीर्वाद होता है, आपकी जो कंट्री है वो कंट्री आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, वो भी फोर्सेस होते हैं। उसके बाद आपका जो नेटवर्क है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईश्वर, तो वो आपकी मदद करना शुरू करता है, और आप वो कर लेते हैं जो कभी असंभव दिख रहा था। तो मैंने, आप लोगों ने भी बहुत देखा है, आपने कभी नहीं सोचा था कि आप डायमंड में वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे, ठीक, कभी नहीं सोचा, लेकिन सूरत बन गया। वो इसलिए बन गया क्योंकि आपने सोचा कि करना है, तो वो उसी चीज को बता रहा है, और कुछ नहीं, आप लोगों को मालूम है मेरा सिर्फ 3 मिनट के लिए आप बैठेंगे। ब्रिगेडियर जी इधर उपस्थित है, डिफेंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो हम शिस्त का भंग नहीं करेंगे। सभा खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट की देरी है, इसलिए आप लोग प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर दीजिए। सर थैंक यू वेरी मच। आपने जो बात बताई, मतलब हमारी तो कल्पना की बाहर की बात है, तो इसीलिए तो आपको बुलाया था कि आप हमें इसमें ज्ञात करें। आपने जो बात बताई, इसमें 4 बात मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। सूरत में से 2 लोग तो मुझे, मैं पहचानता हूँ, जो आर्मी में ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करते हैं शस्त्र सरंजाम में। एक LIT करके हमारी कंपनी है, और एक हमारा खाटीवाला ब्रदर्स, बद्रेश खाटीवाला करके है। वो लोग लश्कर को सब कुछ बहुत सारी चीजें सप्लाई करते हैं। तो मैं आपको बताना भूल गया, LNT जो चंद्रयान में उनका, हाँ, वो हमारे ब्रह्मोस का पूरा एयरफ्रेम सप्लाई करता है। सो वी आर प्राउड ऑफ द सूट। सर आपने जो ऑक्सीजन की बात बताई ना, आपकी कोरोना काल की, जब ऑक्सीजन की पूरी तकलीफ पूरा देश झेल रहा था, तब द सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री was the first chamber in the entire गुजरात जिन्होंने अपनी खुद की ऑक्सीजन बैंक शुरू की थी, और पूरे शहर को हमने ऑक्सीजन उस समय दिया था। आपने एक बात बताई डायमंड बुश बंद होने की, लेकिन हमारा जो डायमंड बुश सूरत में बन रहा है, वो वर्ल्ड का बिगेस्ट डायमंड बुश बन रहा है, वर्ल्ड की बिगेस्ट प्रॉपर्टी बन रही है, ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं। और चौथा जो हम बात कहना चाहते हैं कि आपने बोला बड़ा सोच, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब की भी एक बहुत बड़ी सोच है, दैट इज मिशन 84। 84 तालुका हमारा ये है, 84 देश के वावते, मतलब फ्लैग्स कभी एक जमाने में यहाँ पर फड़कते होते इधर पीछे ही, तो हम इस बार पूरे साल में 84 देश के 84,000 यूथ को इकट्ठा करके एक नया विक्रम बनाने जा रहे हैं। ये हमारी एक महत्वाकांक्षा है। आप में से किसी को भी अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, मेरा ईमेल लिखा हुआ है, आप मुझे ईमेल करिएगा, और मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार की टेक्निकल एडवाइस की भी जरूरत होगी, तो मैं आपको जरूर दूंगा, और अगर मैं नहीं कर सकता तो आपको करेक्ट बंदे से कनेक्ट कर दूंगा, ये आपकी मदद करेगा। तो सर आभार विधि के लिए मैं हमारे इमीडिएट पास प्रेसिडेंट हिमांशु भाई बोरावाला से विनती कर रहा हूँ, आप प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी एग्रीमेंट हो चुका है, काम मेरे को पता ही था, इसलिए उसको आपके साथ करने की सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 11,000 मेंबर्स, उसके साथ जुड़े 150 से भी ज़्यादा एसोसिएशन, 2 लाख से ज़्यादा हमारी इनडायरेक्ट मेंबरशिप, साउथ गुजरात रीजन, सूरत की 65 लाख से भी ज़्यादा जनता, और देश की 140 करोड़ की जनता की तरफ से आज हम
मिश्रा जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ब्रह्मोस जो पहली बार इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ। सर आपका आज जो वक्तव्य था वो रियली इट वाज एन आई ओपनिंग स्पीच, क्योंकि डीआरडीओ और बिजनेस कैसे कनेक्ट हो सकता है शायद आज पहली बार हमको भी जानने को मिला। छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारी सूरत की या साउथ गुजरात की जो एमएसएमई है वो जुड़ सकती है। और उसका आपको एक उदाहरण ये भी दे सकता हूँ सर कि जो अभी चंद्रयान 3 गया था उसमें जो सिरामिक्स की जितनी भी थी वो भी सूरत की देन थी। यहाँ का जो विंसन ग्रुप है उन्होंने सिरामिक्स सप्लाई किया था। और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ की जो इंडस्ट्री है एमएसएमई कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे आए और हमारे यहाँ के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स उनको बहुत अच्छा नॉलेज दिया। ब्रिगेडियर मेहता साहब को भी हम धन्यवाद देते हैं, आज से भी मिले थे और काफी सारी उनसे भी इंस्पिरेशन मिला वॉर के बारे में। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस हियर। Thanks to our own Kanji Balara ji and Mukesh bhai for introducing such a eminent personality to the citizen of Surat. Also thanks to all the office bearers, यहाँ पे पधारे हुए सब एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स, सबका मैं आभारी हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पे आए और अपना ज्ञान का बढ़ोतरी किया। Also thanks to मैडम मिसेस मिश्रा जी जिन्होंने यहाँ पे उनका सबको कंप्लीट देने के लिए सूरत में आए। और इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे डायमंड और टेक्सटाइल है। हम बोलते हम जहाँ जाते हैं गीता के साथ चलते हैं। So thank you everybody and also thanks to press and media जो हमारे साथ हर वक्त चैम्बर के साथ में जुड़े रहते हैं और चैम्बर को काफी अच्छा कवरेज देते हैं। और and last but not the least thanks to all the staff और सर हमारा स्टाफ भी इतने एक्टिव है कि लास्ट ईयर के ट्रायंगल में हमने 250 से भी ज्यादा कार्यक्रम किए। Thank you very much and have a good evening once again and good night. आई सर समाज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।